टीवी। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना बढ़ाई गई है। पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाकों में सैनिक भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की मंशा तनाव और बढ़ाने की है। व्योमिका सिंह की तरफ से यह बयान सामने आया। सेना ने सभी कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गतिविधियां उकसाने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मंशा तनाव और बढ़ाने की है। हालांकि भारत इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। भारत की लड़ाई पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान की सेना से नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि भारत की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है और यही वजह है कि भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, नष्ट करने की कोशिश की थी। और भारतीय सेना का निशाना भी आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकी हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सिविल एरियाज को निशाना बना रहा है, भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है, आम नागरिकों की उड़ान प्रभावित कर रहा है, उड़ान के आड़ में अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की मंशा तनाव और बढ़ाने की है। व्योमिका सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको। Drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murib, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunia were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately.
Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy at these Air Force stations. Employed UCAP. तो पाकिस्तान और भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना बढ़ाई गई है। पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेजना सीमा पर शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान अभी भी संतुष्ट बैठने वाला, चुप बैठने वाला नहीं है। लगातार उकसावे की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। प्रदीप जी, भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अपने सैनिक भेजना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की मंशा अब जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान तनाव बढ़ाना चाहता है, लड़ाई बढ़ाना चाहता है। प्रदीप जी। देखिए, बिल्कुल प्रगति और जिस तरीके से अपडेट मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर संघर्ष जो है उसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज ब्रीफिंग जो हुई है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की, और इसमें जो इनपुट मिले हैं, जो जानकारी मिली है, वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए। वहीं अब पाकिस्तान ने जो सीमा से सटे इलाके हैं अपने सैनिकों को भेजना शुरू किया है, ये जानकारी मिली है, जो दुश्मनी बढ़ाने की संभावित मंशा का साफ संकेत है, ये कहा गया है। साथ ही भारतीय अधिकारियों ने इस बारे में जब जानकारी दी है तो सीधे तौर पर ये कहा गया है विंग कमांडर गोविंदा सिंह की ओर से कि पाकिस्तानी सैनिकों की सीमावर्ती इलाकों में बढ़त देखी गई है, जो तनाव को बढ़ाने के इरादे को दर्शाती है। साथ ही बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही सभी कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है, उचित जवाब दिया है। तो प्रोपेगेंडा वार भी जो पाकिस्तान की ओर से शुरू की गई है, उसका भी जोरदार जवाब देते हुए भारत ने यहाँ पर माकूल हमले किए हैं। कई जगह से एयरबेस से पाकिस्तान के जो तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं वो बताते हैं कि भारत का मारक हमला रहा है, और उसके बाद कहीं न कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान ड्रोन हमले और एयर हमले कर कुछ चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और उन्होंने माकूल जवाब अब तक दिया है। जी सेना की ओर से वीडियो जारी कर ऑपरेशन सिंदूर पर जो भारत कार्रवाई कर रहा है उसके वीडियो साझा किए हैं। उसमें जाबाज भारतीय सैनिक पाकिस्तान पर बम गिराते हैं, चौकियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। तो ये लगातार जो एक घटनाक्रम है, संघर्ष का दायरा बड़ा होते हुए पाकिस्तान जिस तरीके से उसको बड़ा करने में जुटा हुआ है, अब भारत भी पाकिस्तान को उसकी भाषा में जोड़ता। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पता है कि इंडियन आर्मी से जीत पाना, पार पाना पाकिस्तान की सेना के लिए संभव नहीं है। शायद यही वजह कि उकसावे की कार्रवाई को बार बार अंजाम दिया जा रहा, ताकि बाद में अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए तो सांत्वना बटोरने के लिए पूरे दुनिया भर में डंका पीटा जा सके पाकिस्तान की तरफ से। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? देखिए, बिल्कुल प्रगति, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अमूमन जब भी जिस तरीके से कोई कोशिश करता है और उस कोशिश को जब नाकाम किया जाता है तो भारत की ओर से जिस तरीके से पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया गया, अब वो पूरी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तान बेनकाब हुआ है आतंकवाद को लेकर, क्योंकि ये कार्रवाई जो भारत ने शुरू की थी आतंकी ठिकानों पर, वहां पर जो एक अटैक किया गया और ये जवाब दिया गया, क्योंकि जो शुरुआत की गई वो पहलगाम आतंकी हमले के साथ की थी पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के संरक्षण में आतंकवादी हमला अंजाम दिया गया, धर्म पूछकर लोगों को टारगेट किया गया। पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं, वीडियो देखे हैं। तो उसके बाद भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और साफ किया कि ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पर पलटवार करना शुरू किया है, अब जोरदार जवाब भारत का भी उसको झेलना पड़ रहा है। कई एयरबेस टारगेट किए गए हैं पाकिस्तान के, और जोरदार जवाब देते हुए भारतीय सेना नजर आई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को सामने करते हुए विदेश सचिव विक्रम सिंह ने साफ किया था कि पाकिस्तान का गठजोड़ जो आतंक के साथ है, उनकी सेना जो वर्दी पहने हुए जनाजे में नजर आई है, आतंकवादी जो मार गिराए गए। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी आतंक को संरक्षण देती है और इसीलिए आतंक को जवाब देने में भारतीय सेना जुटी हुई है और उचित तरीके से उनको पूरा जवाब दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए। नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।